data analytics, visualization, business intelligence और data mining के बारे में। तो हम cover करने वाला है। आपका स्क्रीन जी सर, आपका कोई आवाज आ रहा है अभी? आवाज आ रहा है लेकिन वो स्क्रीन शेयर कर दें, प्रेजेंट नाउ करें। अच्छा, एक मिनट। Google Chrome may not have screen recording information. नो स्क्रीन शेयर खाली कर दें। First being the line of best fit. It refers to the trend line drawn through graphical data to show how closely your variables are related. This line helps you to predict the value of y for any value of x. Basically, I would say that this is a standard line where you would compare your variables to see like if your data or desired input is actually meeting the requirements, predicted requirements, and so on. The difference between the actual and observed point is called the deviation, meaning that the distance between this point and the line will explain the deviation, like how far or close your actual versus predicted data is. And right, so regression analysis can be used to make certain predictions, but to do so, you will have to consider 3 steps. First will be the dependent variable of y must have a linear relationship with an independent variable. I think this point is trying to explain there shouldn't be much variance between your variables so that the relationship stays standard and elongated over the process. Step 2 will be correlation analysis should indicate a high degree of correlation between the independent variable y and the dependent variable x. However, correlation does not prove causation. Causation is a concept where which explains about cause and effect between a variable. So they're telling us that just because 2 variables are correlated does not mean they have a cause and effect relationship at the same time. And we're going on to coefficient of determination, which is denoted by R square. So it explains the statistic which indicates the percentage change in the amount of a dependent variable that is explained by the changes in the independent variable. And R square tells us the reliability of a coefficient of variation, which is denoted by R and also known as correlation. So it measures like how 2 variables are closely related, but does not explain their cause and effect at the same time. And it's usually measured by the values between -1 to +1. And I will explain to you what each value would mean. For instance, if you find a value of 0 between 2 variables, it means that there's no relationship between them. A value of -1 explains that there would be negative effect between both variables or opposite effect. Suppose like if variable x increases, y will decrease. And having a plus relationship plus of value of +1 means that both relationship will move in the same direction or positively. And a value close to +1 it basically means it's upsloping and minus will mean downsloping. Moderate correlationship. This is just for like a pointer, maybe an MCQ. I'm not sure. If the value of R falls between -0.3 to +0.9, it indicates there's a questionable historical data for forecasting. And t-statistic measures the degree to which independent variable has a long-term relationship with a dependent variable. T-statistic usually ranges between -2 and +2. And if you have a value above 2, it indicates a strong relationship, and value below 2 indicates a little or no relationship at all. Standard of error
of the regression is denoted by S. It measures the average distance that the observed values fall from a regression line. The expression will be y is equal to a plus bx plus e. E is being the error term. And in E, they have expressed it as y minus y naught. This y minus y मेरा cap का मतलब होता है, this y minus y cap का मतलब होता है y क्या actual minus expected result. Actual result minus okay. expected result. जो आपने पीछे बताया ना कि there is a deviations that to be measured कि how the results are varying, ठीक है, based on the expression जो उनका इक्वेशन बना हुआ है उनके हिसाब से एक रिजल्ट आता है और वो रिजल्ट को वो कंपेयर करते हैं एक्चुअल के साथ, उसी को बोला जाता है एरर, ठीक है। इसको एक्चुअल में स्टैंडर्ड एरर बोला जाता है, ठीक है। इसलिए इसको एस से डिनोट किया जा सकता है या फिर वो एसडी के लिए और एक तो टर्म यूज किया जाता है, ओमेगा आई वर्ड यूज किया जाता है दूसरे इसके ऊपर क्वेश्चन भी हैं। अभी हम क्वेश्चन लाएंगे, अभी हम क्वेश्चन ला रहे हैं। I have 22 questions now to discuss once he finish the presentation. और ये regression के, हाँ regression के कंटिन्यू करो सर। हाँ continue. Okay. Right. So the next topic being discussed is multiple regression. Here we use multiple independent variables to forecast one dependent variable. And as we discussed before, y is the dependent variable. And we will have a variety of x's being the independent variables. And certain theories also being discussed in multiple regression. The first one is called goodness of fit. It measures how closely actual values in a statistical model are to expect or predicted values. Variables with high R results in goodness of fit and vice versa. Confidence interval estimates the uncertainty caused by sampling method when drawing conclusion about a population of a sample. And in regression, we also will have like 4 kinds of regression that explains the nature of regression. So I'll explain about it. And first one is called the trend line regression. It's about a constant increase or decrease in the value over time. So if you see here, this is an example of a regression trend line where there's either a positive growth or a negative decline. It's constant. And cyclical will be how values change in a long-term cycle. This is more related to your financial or economic expansion and recession, where there's a growth period followed by a steady, stable economy, followed by decline. This is basically referring to cyclical regression. Seasonal is also very similar to cyclical, but it explains within 1 year time frame. And fourth kind of regression will be irregular pattern, which is a combination of trend line with cyclical or seasonal pattern. So here are the examples. If you see, there's a stability, then followed by a growth, again stable, decline. This explains seasonal or cyclical depending on the time frame. Moving on, what if analysis, also known as sensitivity analysis. So this analysis measures how outcome changes with changes in input variable. It can be used to determine which input parameter is most important for achieving accurate predictions. And a subvariation of this analysis is called goal seeking. In goal seeking, you're trying to find out what input variable will cause a desired output. So changing which variable will give you a fixed output. That's what it works in a reverse way.
of sensitivity analysis. In sensitivity, you're trying to see how output is changing with a fixed input, and vice versa will be goal seeking. So sensitivity analysis is there's two benefits and limitations of these discussed in our textbook. So the first benefit would be quantitative model that generates specific results, aiding in recommendation, conclusion, and solutions. Second benefit will be that it helps in finding critical variables affecting our output. Say, for example, customer savings and income. Moving on to the limitation part. The first limitation would be it demonstrates only which information to discard. Second limitation will be overhead cost that doesn't add value. ये मुझे clear एक्चुअल नहीं है में क्या भाई। होता है सेंसिटिविटी में आप एक्स्ट्रा कुछ सेंसिटिविटी एनालिसिस रन करके जो आप ओवरहेड सब एक्सपेंस करते हैं ना उससे बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं होता है। अच्छा अच्छा ऐसा। ओके थैंक यू भाई। ओके नाउ वी आर मूविंग। अच्छा मोंटे कार्लो एक बचा हुआ, एक और बचा होगा, एक दो बताएं। Monte Carlo simulation होता है एक digital simulated model. It's a digital simulated model that predicts outcome with desired variables and inputs in mind. The input used are random and not selective in this case. And most companies use Monte Carlo simulation as a last resort after they have gone through many other analytics models. The accuracy of this model depends on how many times you repeat the simulation over and over, because the most common output that will arrive from running as multiple simulations is what you would consider as an accurate result. एक्चुअल में ये इटरेटिव्स मॉडल्स होते हैं क्यूटी के, ठीक है। क्यूटी के जो होते हैं क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के ये जो मॉडल्स होते हैं ये इटरेटिव्स होते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपको मल्टीपल टाइम में प्रोसेस को रन करना पड़ता है और चेक करना पड़ता है, और जहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसीज या नंबर्स ऑफ रिजल्ट जहाँ पे फॉल करते हैं ज़्यादा उसको हम लोग करेक्ट या एक्यूरेट मान लेते हैं। और विजुअलाइजेशन लास्ट पोर्शन होता है visualization. It's a concept which explains using graph and numbers to better convey an information in a simple way. The benefits of using a visualization model is that it saves time. It represents a good amount of data in a short span of time. It also saves costs. One of the limitations that you may face in this visualization model is that not everyone is familiar with the model. So the way each and every one of us would interpret a given information from this model will be different if we are not familiar with it. And I'll show you through the different examples in a visualization model. This is time series, which we have seen before, explaining trend line, seasonal effect. Second will be distribution. Either bar graph, pie chart, सब explain किया जा रहा है. And this is a variation of the bar graph model. So we'll go in detail. First one will be the scatter plot or dot plot. This kind of data reveals the correlationship between two or more variables. And here, as you can see, it's a plot which explains how much sales you have made over a given number of days in a week and how many units. And there's a color code here that's explaining to which days of a month. So basically it helps you in representing a large data over a large frequency of time. With the multiple And combinations. from this Like data, you have a combination, like here you can find there is a combination like days, there is a combination like a month. So if you draw from a simple chart, maybe you will miss to present.
But if you are using this plotter or dot line, or sometimes you are using the two lines above and down line also, that help you to interpret with multiple inputs. जब आपकी प्रेजेंटेशन में 2 से 3 इनपुट हो जाते हैं ना, जिस पे आपके रिजल्ट को चेक करना होता है, कोई आदमी उसको मंथ्स के लेवल पे अंडरस्टैंड करना चाहता है, कोई डेज के लेवल पे अंडरस्टैंड करना चाहता है, कोई उसमें भी ब्रेक किया हुआ है, मंथ को भी उसने वीक के पैटर्न में ब्रेक किया हुआ है, तो इससे क्या होता है कि मतलब उसमें यहाँ पे 3 लेवल्स की इनपुट्स चाहिए। 3 लेवल यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 और मोर वेरिएबल्स के इनपुट के लेवल पे अगर आपको कुछ प्लॉट करना है, तब ये डॉट प्लॉट्स आपको हेल्प करता है। यहाँ पे बेसिकली क्या इनपुट है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे बेसिकली 3 इनपुट्स है। पहला इनपुट क्या है, मंथ डेज है, दूसरा इनपुट क्या है, मंथ्स है, तीसरा इनपुट वीक्स है। ठीक है, आगे आइए। नेक्स्ट होता है बार चार्ट एंड लाइन चार्ट। इधर बस 2 वेरिएबल्स के बीच में एक्सप्लेन किया जा रहा है, जैसे कि डेज वर्सेस नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, and the difference between both of them would be that here you can see, it's easy to interpret like how the data is gaining a trend or seasonal pattern or cyclical pattern and so on. You can also find the same with bar chart if you make a median selection between each data point and then connect those lines. It will be similar to what you see here. Yes. And pie chart is a form of circle that portrays one value for each category. तो बस सिंपल है। पाई चार्ट में क्या होता है कि मान लो कि अगर 4 स्टूडेंट है, 4 स्टूडेंट ने 25-25 मार्क्स का स्कोर किया, तो उसको हम उसका 4 क्वेश्चन बना के प्रेजेंट कर देंगे। सिंपल है। और अगर आपको मैनुअल कभी बनाना पड़ता है पाई चार्ट, तो पाई चार्ट की टोटल वैल्यू जो होती है वो 360 के बराबर होती है। ठीक है, पाई चार्ट को इसी तरह बनाया जाता है कि टोटल वैल्यू 360 में आके कवर हो जाए, क्योंकि एक सर्कल 360 में कंप्लीट होती है। ठीक है, इसके आगे कुछ है क्या सर? इधर ये डेज के हिसाब से होता है या ईयरली? कुछ भी हो सकता है। सिंपल, ये 2 डेटा वाला है, इसमें 3 डेटा पे आप नहीं बना सकते। यानी 2 ही, एक इनपुट है, एक रिजल्ट्स है। यानी कि एक मान लो कि डेज है और सेल्स है, या एक स्टूडेंट है, मार्क्स है। अगर इस टाइप के रिलेशन होते हैं, या एम्प्लॉइज हैं, सैलरी है, ठीक है, या क्लास है, सैलरी है, यानी दो वेरिएबल्स पे यदि काम करना हो तो पाई चार्ट इज ओके विथ यू कैन यूज द पाई चार्ट। ठीक है। And this will be the last type of visualization known as the box plot. In box plot, it's easy to display the minimum, maximum value, the median, mean, first and second quartile. Basically, this kind of visualization is used mainly for stock values, or to represent the equity or security exchange stock values, opening value क्या होता है, closing value क्या होता है. So it's easy to interpret from this one. I'll show you more in detail. So this is a box that you see here. The top portion will be called the possible outliers. In between, it will be represented as upper whisker and lower whisker, and median, the midpoint. This will be the values in each quarter, the first quartile, third quartile. पर सर ये आउटलायर्स क्या होता है? जैसे कि values that, यानी इसके आगे एक्सपेक्टेशन नहीं हो सकता है ना। ये दोनों साइड है, देखिए ना, अप एंड डाउन दोनों पे है ना। आउट पॉसिबल है, यानी नीचे भी होता है, ऊपर नहीं जा सकता, इससे आउट ऑफ द रेंज नहीं होएगा। मैं आपको इसका एग्जांपल जैसे कि रेंज हो रहा है इधर, जैसे जैसे इंडिया में क्या है, अगर स्टॉक एक्सचेंज में अगर वो 10% का उन्होंने मार्जिन रखा होता है, 10% भी नहीं, इवन 5% की मार्जिन रखी होती है। अगर मार्केट में सेंसेक्स अगर 5% ऊपर या 5% नीचे अगर जाता है, तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है सर्किट। तो क्या होता है, वो ही आउटलाइनर का तरह काम करता है ना, उससे ऊपर में जा सकता है। तो मार्केट क्या होता है, आधे घंटे के लिए क्लोज हो जाता है, सारी ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है।
ताकि चीजें स्टेबलाइज हो जाए। तो ये उसी तरह है कि यानी कि इसके आगे भी नहीं जा सकता, उसके पीछे भी नहीं जा सकता, अदरवाइज वो ये हो जाएगा, मतलब क्रैश कर जाएगा फिर। राइट। तो इसका जो राइट एग्जांपल है वही है अपना शेयर मार्केट का। थैंक यू सर। मेरे साइड थैंक से यू खत्म वेरी हो गया। मच। आपकी साइड से खत्म हो गया, पर आप अगर मेरे को भेजे होते देन आई वुड हैव टेकन सम बीच बीच में। आपने कोई नहीं, आप मेरे को भेज दे अभी प्रेजेंटेशन। अब अभी भेज देगा मैं। नहीं अभी ऑफिस में। चले भाई यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा हमारे साथ भी आए आप। हेलो। जी सर, आपके साथ ही। हाँ, द रिलेशन बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इन अ रिग्रेशन एनालिसिस सच दैट द एक्स इंक्रीजेस वाई डिक्रीजेस। इसका मतलब क्या है जी? एक्स और वाई के बीच में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, इसमें 3 फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, इसलिए समझ समझ के बोले। ठीक है, ऐसा बोल रहा है कि द कोरिलेशन परफेक्टली निगेटिव होना चाहिए, जिसने भी सही बोला है। उसके बाद आर का जो वैल्यू होना चाहिए वो -1 होना चाहिए, और रिग्रेशन लाइन कैसा होना चाहिए जी? डाउनवर्ड होना चाहिए। अगर ये तीनों समझ, अगर किसी को तीनों समझ आया तो पूछ बताएं, नहीं समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन। दोबारा बताओ। देखिए, अभी हमारे प्रणब भाई ने एक एग्जांपल लिया था जिसमें उन्होंने कहा कि एक वेरिएबल इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब है कि वो निगेटिवली कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरा, उसका कोरिलेशन जो होना चाहिए, कोएफिशिएंट कोरिलेशन -1 होना चाहिए। तीसरा, जब भी -1 कोरिलेशन होगा तो रिग्रेशन की लाइन जो होगी वो डाउनवर्ड आएगी। ठीक है जी। तो हमने तो इसमें एक पे मारा है टिक, देखो क्या। ठीक है, ये इतना बड़ा उसका स्टडीज है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इजी याद रखने के लिए, अगर दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा तो निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव को -1 से प्रेजेंट करते हैं, और जो भी चीज की वैल्यू निगेटिव होती है उसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। ओके भाई, ये वाला मार्क्स मेरा है जी। जी। आइए, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेट विद रिस्पेक्ट टू द कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ अ रिग्रेशन एनालिसिस। कोएफिशिएंट कोरिलेशंस, पहले बोल रहा है कोएफिशिएंट कोरिलेशन यानी R of -0.8 indicate that the correlation between the independent and is low and the regression line is downward sloping। ये सही लग रहा है, लेकिन लो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोलता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट 0.85 indicate between the independent and dependent variable is high and the regression is downward sloping। ये होगा 0.85 ना? नहीं, लो तो नहीं होगा ना, माइनस है ना, तो माइनस में तो लो। माइनस में तो लो होगा। लो होगा और डाउनवर्ड भी होगा। माइनस है तो चलो ठीक है भाई, मेरा नहीं हुआ, गलत होने से आप लोग का। ठीक है, देख लो भाई, हम ये बोल रहे थे। ठीक है, कितना नंबर आंसर? आंसर बी है भाई। अच्छा, मैं बता रहा था बी, आप लोग ने गलत करवा दिया। आप बताओ भाई, इसमें बताओ टाइम सीरीज, वो हमारे टाइम सीरीज कौन सा आता है इसमें से? टाइम सीरीज एनालिसिस मॉडलिंग कैन बी क्लासिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डाटा एनालिटिक? डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव। दो है, दो के कॉम्बिनेशन में बताना है भाई। हाँ बताइए भाई, दो बताना। तीसरे को छोड़ के डायग्नोस्टिक होना एंड चाहिए भी प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव। क्या प्रेडिक्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव? 3 और 4। ले भाई, प्रणब कुछ बोल लो भाई। मुझे तो
2 और 3 लग रहा है डी ऑप्शन। डायग्नोस्टिक एंड प्रेडिक्टिव। चलो भाई मेजोरिटी 2 और 3 पे है भाई। मान लिया। और बाकी हमारे और किसी भाई ने नहीं बोलना था। वाह वाह, इसी की सुपर सही। रॉन्ग। सुपर, मेरा नहीं है भाई। आर स्क्वायर ये- क्या बताता है बता दे रहा हूँ। सर एक मिनट, वो पीछे करेक्ट उसने क्या बताया था, वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन। भाई एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़ लेना। बोल रहा है टाइम सीरीज जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव भी होते हैं और साथ साथ में प्रेडिक्टिव भी होती है, ठीक है। पापा ये एक पेपर मम्मा की चीजें के लिए जो मम्मा को चाहिए और अपनी चीजों के लिए। व्हाट क्या बोला, व्हाट डज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस इंडिकेट। आर स्क्वायर क्या होता है जी? डी सर। आर स्क्वायर क्या होता है? या तो सी होना चाहिए या डी। निगेटिव आर स्क्वायर होता नहीं है तो ए तो नहीं होगा। सी या डी में से एक है। परसेंटेज रेशियो में होता है ये आर स्क्वायर। परसेंटेज में आता है। सी या डी में से एक है ये। एक मिनट दे रहा हूं। सी होगा। सी होना चाहिए। सी या डी में से एक। सी हमको सी थोड़ा लग रहा है पूरा पढ़ के आंसर। सेल नहीं पता गीता, सेल नहीं लेना सेल। ये बताएं भाई ये क्या है? बी को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट ही होता है ना? कांस्टेंट। वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल जी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं, वेरिएबल कांस्टेंट बी। अ डिपेंडेंट वेरिएबल वो फिर से जाके कांस्टेंट ए होता है। हाँ तो उस वक्त नहीं बोले हैं, देखने के बाद बोलते नहीं चलेगा। ये बताइए व्हेन टू वेरिएबल्स आर रिग्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, इसका मतलब क्या है? -1। आर स्क्वायर का वैल्यू कभी -1 हो सकता है क्या? नहीं वो मैंने पढ़ा नहीं था। 0.7। वन ही होगा। हमको भी वन ही लग रहा है वैसे। एक्सप्लेन बाय द, क्योंकि -1 स्क्वायर में नहीं जाएगा। यहाँ पे 3 बातें बोला। आर स्क्वायर अगर 1 है इसका मतलब ये है कि 100% ऑफ द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज 0। इसका मतलब है नन ऑफ द वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द वेरिएशन is less than 1 such as the 0.7 the coefficient express the percentage of total variation is dependent variable that can be explained by the variation। and ये सवाल आप ही करे भाई, मेरे को समझ नहीं आया। चले भाई, ये तो आपको सबको आता होगा सिंपल रिग्रेशन और मल्टीपल रिग्रेशन का डिफरेंस। ये सही है ना जी? मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होता है। ये बताएं, गलत बताना इसमें।
A multiple regression line has more than one dependent variable. Okay. सही है। ये बता, -1 + 1. जल्दी बोले। To predict the value D over a period of time. सही है। Standard of हमको यही लग रहा है। और पहला नहीं था। भाई नहीं, नहीं गला, एक बार और चला। residual क्या होता है? बैलेंस। ठीक है, तो हम साथ में खिला लेंगे। हाँ भाई, ये बताइए, इसमें से कौन सा लाइन नहीं है सही? बेसिक नहीं होता। ट्रेंड सिग्नल साइकिल ये सही है, बेसिक नहीं होता ना। A नहीं है। Basic. बेसिक नहीं होता है भाई। ये होता है ना चार ही पैटर्न जो आपने पढ़ा था, ट्रेंड सिग्नल सिग्नल इरेगुलर। ये कुछ टाइम सीरीज का सवाल है भाई। ये ट्रेंड लग रहा है। इसको ट्रेंड बोलते हैं। Continuous increase. एक अनीस भाई एकदम एक बार में पकड़ लिए हैं। सीक्वेंस लग रहा था भाई। नहीं, ये वाला हम क्लास 1 में भी हम लोग जब 11-12 में जाते थे तो ऐसा डेटा रहता था, बोला हाँ ट्रेंड एनालिसिस का सवाल है। टाइम सीरीज linear equation is used to predicting the model the variable is being predicted. I think D है। बोल रहा है the variable that is being predicted is the what? D होगा सर। डी होना चाहिए। टाइम सीरीज के अंदर एक्स की जगह टी तो आता है। y = a + A bt। plus bx. bx a plus bt आएगा टाइम सीरीज के अंदर। डिपेंडेंट वेरिएबल डी मैं लिख रहा हूँ, यही है। गलत है। डिपेंडेंट वेरिएबल Y. वाई में भेज दूंगा आंसर, एक बार रीड कर लीजिएगा, नहीं समझ आएगा। डिपेंडेंट वेरिएबल y होता है। अच्छा ये बताइए क्या है? बेस्ट फिट लाइन याद है, जहाँ पे आप बोल रहे थे कि मोर क्लोजली रिलेटेड रहेगा। C. ये सही लगा। हाँ जी, पता नहीं। सी जाने दो सर। ये भी लग रहा था अंदर से। चलो सी ना डी। सी नहीं लगी, डी लगी। डी लगी, करीब करीब है। चलो सही है, आगे देख लो भाई। ये क्या है?
पहला नहीं है, ए स्क्वायर रूट था कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट। सर ए है। इसका बी स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ कोरिलेशन स्क्वायर रूट हो ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर रूट आर स्क्वायर रूट, क्योंकि Square. डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ अ रिग्रेशन एनालिसिस। स्क्वायर रूट तो नहीं होता है, स्क्वायर ही होता होगा। बी सर। जी किरण, ये लो स्क्वायर रूट है। क्योंकि डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर है ना, कोरिलेशन। पहले हमने बोला था ए सर। हाँ भाई, ये मार्क्स मेरा में डाल दो, हो गया एक गलती। अब बताओ। ये स्ट्रेंथ ही पता करता है ना, रिलेशनशिप का स्ट्रेंथ लीनियर पता रिलेशनशिप बी। बी बी भाई कौन सो रहा भाई? कोई भी नहीं स्वर, सब जाग रहे। Which of the following statement in respect of regression is not true? Not true. ये इसमें मेरे ख्याल से बी है, जिससे रिलेटेड नहीं है। डी लग रहा है सर मुझे। नहीं सर बी है। Of an inappropriate इसमें हिस्टोरिकल डाटा नहीं होता रिग्रेशन में। अरे रिग्रेशन हिस्टोरिकल डेटा पे ही बनता है भाई साहब। ए होगा। ये होगा यार। ए का कुछ अब अलग ही बात बोल रहा था यूज एन अनएप्रोप्रिएट डिपेंडेंट वेरिएबल में लीड टू द। पहली बात तो ये डिपेंडेंट तो रिजल्ट्स हो जाता है, और रिजल्ट के चेंज करने से पीछे के एक्सप्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइक्लिकल पैटर्न क्या है? डी साइक्लिकल दैट लास्ट फॉर लेस देन 1 ईयर। याद है? सही था क्या जी? ग्रेटर देन 1 ईयर। भाई आप पढ़ के प्रेजेंटेशन दिए तो फिर ऐसा अब इसमें बोल रहा है कि स्लोप कौन सा होता है? वेरिएबल कोएफिशिएंट, वेरिएबल डी। सही सही। ये बताएं। पॉजिटिव या हाई होगा? पॉजिटिव। क्लोज मैच। बी। हमको भी वही लग रहा, पता नहीं। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। हाई लिख रहा। फर्क क्या होता है? प्रोपोर्शनेट। डिग्री ऑफ कोरिलेशन इज हाई। अच्छा, या तो रिलेशन जो होगा या तो पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। बट अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको हाई वर्ड से बोलेंगे। तो हम लोग का आंसर दिया हम लोग का सही था,
लेकिन उसके जो उसको बोलते हैं दूसरे नाम से वो हम लोग नहीं बोल पा रहे थे। ये क्या है? व्हाट इज द correlation analysis true. चेक नहीं हुआ? C. लग तो रहा। देखते हैं। D भी possible. सी पॉसिबल था। ट्रू स्टेटमेंट सिंपल। ये क्या है? इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन बताना। B. C नहीं होगा -0.2. बी। पर +1 -1 से +1 होता है ना, तो 1.03 एप्लीकेबल नहीं होगा इधर कोरिलेशन में, तो 0.75 होगा। पता नहीं आगे कोरिलेशन का रेंज -1 से +1 तो है, आगे उसका आंसर पढ़ेंगे ना। -0.89। -8.9. -8.9 ज्यादा क्लोज टू 1 है बोल रहा है। लेकिन क्लोज टू 1 कैसे? माइनस है ना, तो अरे क्लोज स्ट्रॉन्गेस्ट टू 1। देखिए क्या लिख रहा है, द कोएफिशिएंट द न्यूमेरिकल मेजर्स the move direction mean that the no correlation between the two variables, that relations between them is no linear. बिटवीन टू एंड पॉइंट्स जो Strong का क्लोज होता मतलब क्या हो गया? ये है 0.89 है। सही है। ये क्या है? correlation in term of frequently conjunction with regression. Best explain. R coefficient of correlation, variance in term of D. measures in relative relation between two variables. It's always range. बी होना चाहिए D B या D? बी बी B for बंगला। लो भाई D था भाई। हेलो। हाँ भाई, हाँ भाई। ओके, आई चेक किया मेरे माइक में पहले कितना बार हेलो हेलो बोल दिया, इसलिए मैं सोचा नहीं सुनते। अब बताओ भाई, द सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन हैज अ R स्क्वायर। D था। पर B भी तो था, does not have a strong relation भी तो हो सकता था। The R is the percentage of total variations that can be explained. Therefore, R square 0.85 means the variation is explained as depicted in the regression line. The dependent does not have 85% independent. Dependent variable is explained. अच्छा, R square total variance in the dependent variable. R square is 0.84.
A change relation in the dependent variable is explained by variation of independent variation line. चलो, इसके ये तो सबको पता होगा भाई, आप लोग को। ये पता है कि नहीं? डी बी या डी? डी डी डी। ये कैसे होता है? हाँ। minus डी 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 -1 है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आता है तो ये Decline हो रहा है। नीचे ऊपर जाता है। हाँ सही। एक करा inverse relation. ये लिखना है, ये तो सबको आता है। ए दस को- 20.63 हाँ 5.23 प्लस 1.54 into 10। हाँ ये सबको आता है। ये बताना है, ये बिना पढ़े बताना है, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है। बिना पढ़े बताना भाई। अभी थोड़ी देर पहले किया Trend था। or seasonal. Trend or seasonal. B option. 1 and 2. B. चलो भाई, सी मार दूं? B sir. सी मार दूं? हाँ D cyclical होगा, seasonal नहीं। बिना पढ़े थे। 1 2 नहीं। कोई बोल रहा था। और वो मेरे हाथ है। ये भी बिना पढ़े बताना है। देखो इसमें क्या हुआ, देखो अपना सेल फोरकास्ट बना रहा है। डेटा रिगार्डिंग बोथ ऑटोमेटिक एंड इंडस्ट्री सेल दोनों उसका निकाल लिया, ठीक है। इंडस्ट्री सेल ऑफ द रिप्लेसमेंट पार्ट as well as both the used and new and automatic in the community for last 10 years has been accumulated. If automate want to determine if the sale of the replacement password pattern after the industry sale of replacement part or the sale of used or new outcomes, ये इस टाइप की चीजों के लिए वो क्या यूज करेगा? टाइम सीरीज डेटा यूज करेगा ना? अरे हिस्टोरिकल डेटा वो टाइम सीरीज का यूज करेगा ना भाई साहब। एक क्यों यूज करेगा? मैं बोला ना, ये मार्क मेरे साथ डालो। क्यों नेक्स्ट टाइम आपके साथ डालेगा? ये क्या है? इंग्लिश बी B. C. C sir. सी पॉसिबल है। सी ये चांस है, बी थोड़ा ज्यादा चांस है, सी उसका भी ज्यादा है, ये अच्छा है। बी। आज वाला तो मैंने क्रेडिट लेना ही नहीं है, बट हमारे परसेंटेज 50-50 है सर। उससे भी कम होगा शायद। The linear regression linear relation between the independent and means that must be direct one.
ये लग रहा है। परफेक्ट। ये क्या था? इसमें से ट्रू नहीं बताना। डी। C. An irregular pattern has predictive value. चलो भाई सी मार दे रहा हूँ। सी। वैसे मेरे को बी लग रहा था बट सी में मारूंगा। ठीक है चलो। अच्छा था, नहीं लग रहा था, गलत लग रहा था। हाँ भाई इसमें कुछ बता दे, आंसर बताएं भाई। 12,500 ए। कमाल भाई ये कैसे? ये रटा हो। यस। नहीं सही क्या है मिराज भाई ने सही कहा। इसमें से बता दे भाई, जल्दी बताएं। इसमें सी, a significant change in labor productivity। लो भाई ये भी रटा हुआ है भाई। साला ये शहीदों में नाम है, शहीदों में नाम। ये तो वही चलिए, साहब ये- हो रहा, तुम करो तो चमत्कार, हम करें तो बलात्कार। वाह। नहीं कमाल। अच्छा ये भाई साहब, रिलेशन बताना है। जवाब कब रेडी? डी डी मिराज भाई, डी डालो डी। चलो भाई डी डाल दिया भाई। चलो भाई ये बता। अभी कमाल साहब जवाब देंगे, कमाल साहब का जवाब चाहिए। सी डायरेक्ट करें जी, बी फिट करें जवाब। सी हाई गुडनेस ऑफ फिट मींस। लो भाई रट्टा भाई, कोई मसला नहीं। कमाल भाई ने क्वेश्चन दे के आंसर याद किए। साला नया ये नहीं सोच रहा है कि नया नया शहीद होके आया हुआ है एग्जाम दे के। पूरा आंसर है मिराज भाई, इसलिए। ओके भाई ये मेरा परसेंटेज नहीं है, दिस इज योर रिजल्ट्स। ओके भाई इसका कहने का मतलब ये है कि आज वाला एक मिनट मिराज भाई, एक मिनट आपकी बात रोक के कहूं। हाँ एक बार रिग्रेशन के ना, हाँ क्लेम के और हॉक के भी उठाओ, क्योंकि मुझे वो सवाल नजर में पड़े ही नहीं जो एग्जाम पैटर्न पे आए। मैं आज मैं खाना बनाने जा रहा हूँ भाई। नहीं आज नहीं, खाना बन चुका। ठीक है भाई आप सब लोग नहीं अनिल भाई एग्जाम के अंदर रिग्रेशन के आए थे, मैं इसलिए कह रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इस सेक्शन में वो सिर्फ रिग्रेशन के ही क्वेश्चन देगा। नहीं कल मैं पूछे थे ना, हाँ जी, एक दो रिलेटेड तो हैं उसमें एग्जाम पैटर्न के, लेकिन वो इतने टफ क्वेश्चन थे तो नजर में ही नहीं पड़े अब तक। जी ओह इसका आसान सा तरीका ये है कि एक बार मैं खुद देख लेता हूँ कि किस टाइप के उन्होंने हॉक में क्वेश्चन दिए हैं। सॉरी हॉक के क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया, ग्लीम के क्वेश्चन किस टाइप के दिए हुए हैं मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है और मैं सारे डिस्कशन अभी अगर हमको ये भेजेंगे उन्होंने प्रेजेंटेशन, और नहीं तो मैं एक बार खुद एक ये करता हूँ, इसका एक छोटा सा और प्रेजेंटेशन बना के जितना भी ER स्क्वायर वाले जितने हम लोग के सवाल गलत हो रहे थे ना